सर। सर वो कह रहा था मैं कि एक बार प्लीज आप फिर से क्या ये सेक्शन 3 क्लॉज डी का जो फर्स्ट और सेकंड सब क्लॉज को एक बार प्लीज आप एक्सप्लेन कर देंगे दोबारा। सेक्शन 3 क्लॉज डी का सब क्लॉज फर्स्ट और सेकंड जो है। दिस इज रिगार्डिंग द सपिन रिलेशन। यस सर, प्राइवेटेड रिलेशनशिप में जो सपिन रिलेशनशिप की बात की गई है उसके बारे में। नहीं, प्राइवेट रिलेशनशिप तो अलग होता है। दिस इज डिफरेंट, पिंड इज डिफरेंट। हमको सर 3 क्लॉज जी का क्लॉज 1 और क्लॉज 2 जो सब क्लॉज है वो। समझ गया मैं, आई गॉट द पॉइंट। थैंक यू। सर जी, इन सेक्शन 3G जो डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में देयर वाज एक्सप्लेनेशन टू इज इट नेसेसरी टू रीड और लेटर ऑन इट विल कम। नहीं रीड आउट। व्हाट इज रिटन? Sir, relation of half or urine blood as well as by fully blood, and second one was the illegitimate blood relationship as well as legitimate. Third one, relationship by adoption as well as by blood. So half this was written in 3D, urine blood, full blood and half blood, C and D. सर कहाँ गुरुजी नहीं दिख रहा है? खोजो अभी दिखेंगे। वही तो पता, गोरखपुर में होंगे सर। प्रकाश के सवाल का जवाब ढूंढना में जाके पड़ गया। प्रकाश खुद ही सवाल है। सही बात है। भोजपुरी नहीं आती है प्रसून जी। आधे क्षेत्र बात कर रहे हो क्या मर्दवा? इतनी आती है मर्दबा मतलब। नया लिंक आया है। हाँ देख रहे हैं। नया लिखा है, मेरे पे तो नहीं है। मेरे से दुश्मनी है क्या? नया वाला जुड़ना है क्या आप? बड़ी नोटंकी है यार।
हेलो, अरे आदित्य, आदित्य, आशुतोष जानते हो शायद आशुतोष मिश्रा आशुतोष शर्मा छोटा सा लड़का नहीं था उसको मतलब एक हफ्ता से ज़्यादा दिन हो गया, एक हफ्ता 7-8 दिन पहले जुकाम जैसा बुखार था। तब से मतलब ठीक जुकाम तो ठीक हो गया, खांसी उसी हो ही नहीं रही है, ठीक है, बस बुखार है तो क्या संभाल बोल दो उसको दिखाने के लिए। हो गया था। तो लिखा कि मतलब दोबारा नहीं दोबारा लेकिन 7-8 दिन हो गया, तब तक कब्जा में ले लिया था 7-8 दिन। नहीं तो कोविड का बुखार किसी को 10 दिन तक भी रह सकता है, महीनों दिन तक रह सकता है, जरूरी नहीं है। Okay, आदमी please repeat your question. Who was asking? कोविड हो भी गया तो डरने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। तो जाओ tell me. करवा लो। बहुत तेज बुखार है। Tell me. खाओ सर सेक्शन 3F में सेपेंड रिलेशनशिप की बात की गई है, उसके बाद जो सेक्शन 3 क्लॉज जी है उसका जो सब क्लॉज फर्स्ट और सेकंड है, वही सर मैं कह रहा था एक बार प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। I got the point. ठीक, थैंक यू Yes, the question. Your question is actually you want to get the explanation of 3G. 3G. This is prohibited relationship. And so far as the first and second one concerned, this is actually prohibition has been made that marriage cannot be possible in between the two persons. First one cannot marry with the lineal ascendant. Lineal ascendant means direct, ascendant means towards the upper side. Upper side means towards the father side. So first prohibition is made that one cannot marry with the father, grandfather, great-grandfather, great-grandfather, great-great-great-grandfather, so on and so forth. So this prohibition is made under the first category. So under first category, it is not possible to marry with any girl with his father, grandfather, great-grandfather, so on and so forth. The second category is actually one cannot marry with the lineal ascendant and descendants of wife and husband. Here, what does it mean? Here, actually, husband and wife, they are under the prohibited degree. Whose husband and wife? Lineal ascendant and lineal descendants, husband, wife. Firstly, I am taking the example of lineal ascendant. Lineal ascendant, I have pointed out, this is towards the upper line. Father, grandfather, great-grandfather, great-grandfather. So, from them, actually marriage is prohibited under the first part. In the second part, marriage also prohibited with the wife of father, grandfather, great-grandfather, great-grandfather, and so on and so forth. Marriage is not possible. So it means that one cannot marry. Here the question is who cannot marry? Any son cannot marry with the wife of father, with the wife of grandfather, with the wife of great-grandfather, and so on and so forth. Are you getting my answer? Similarly also,
no one is allowed to marry lineal ascendants, wife and husband. Lineal descendant means toward the lower line. Lower line means son, grandson, great grandson, great grandson, and so on and so forth. So it is not possible for any person to marry the wife of the son, wife of the grandson, wife of the great grandson, and so on and so forth. Similarly, also lineal descendant is coming as a daughter. So one is also not allowed to marry with the daughter's husband, granddaughter's husband, great granddaughter's husband, so on and so forth. Are you getting? So here actually prohibition is made that one cannot marry. One includes male and female both. To the husband and wife of the lineal ascendant toward the father's line. Father's wife marriage is not possible. Grandfather's wife is not possible. Great grandfather's wife marriage is not possible. Similarly also, one cannot marry with the husband of the mother. It means daughter cannot marry with the husband of mother, husband of grandmother, husband of great grandmother. Similarly also lineal descendant, son and daughter, they are lineal descendant. Son, grandson, great grandson, great grandson, they are lineal descendant. Similarly also daughters, granddaughter, great granddaughter, great granddaughter, so on and so forth. It is not possible to marry the wife of the son's line. It is also not possible to marry with the line of the daughter's husband. Are you getting or not getting? Who was telling? Yes, sir. Thank you. Now I want to discuss today that how to trace out the lines. Because it is very important to know practically that how we can trace the lines. Because in subin relationship, Hindu Marriage Act defining that towards the father line up to the 5, towards the mother line up to the 3, they are actually within the subin relationship. And a person who is offering the pindadan to father's line up to 5 and towards the mother line up to the 3, and the second person to whom he wants to marry, if he is offering the same person, then this is called as they are subin, because they are offering the pindadan to the same persons. So since they are offering the pindadan to the same person, they are being called as a subin. मान लीजिए आप अगर जो है पिंडदान दे रहे हैं किसी आदमी को और लड़की भी उसी आदमी को पिंडदान दे रही है, तो आप उस लड़की से शादी नहीं कर सकते। क्यों? अगर वो 5 डिग्री जो है फादर की लाइन में है और 3 डिग्री मदर की लाइन में है। क्यों? क्योंकि वो सबिंड है। तो कोई भी अपने सबिंड से विवाह नहीं कर सकता है। This is being actually prohibited. I have sent through WhatsApp certain figures. I am also opening that figure. Go through. Are you getting this message? Any person come out? Yes, sir. WhatsApp. Actually, I have sent certain sketch. Out of that sketch, try to find out the first one. The question is in this case, whether a person can marry with the mama's daughter or not. Mama's daughter. Go through the first figure. Mama's daughter means a person who is connected through mother's line. मामा क्या होगी? क्या होगा? मामा जो है नाना का लड़का होगा। इसलिए मैंने क्या बताया? पी, पहली फिगर देखें, पी
पी जो है वो किससे लिंक्ड है? मदर से। मदर किससे लिंक्ड है? नाना से। नाना के दो बच्चे हुए, एक मदर है, दूसरा मामा है। मामा की लड़की से क्या शादी संभव है? कहा गया कि अगर आप काउंट करिए तो गर्ल्स के साइड में और बॉय के साइड में, दोनों साइड में आप देखें, बॉय के साइड में क्योंकि वो मदर से कनेक्टेड है इसलिए 3 लाइन, और गर्ल के साइड में किससे कनेक्टेड है? वो अपने फादर से कनेक्टेड है। यहाँ जो व्यक्ति होता है उसका सेक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई लड़की या लड़का है। तो अगर आप जो है मदर के लाइन पे चले तो नाना तीसरी लाइन में आता है, वो इंक्लूड होगा जो आदमी है, जो लड़का है। और अगर गर्ल की लाइन में चले, हाँ बोले, अगर गर्ल की लाइन में चले तो गर्ल किससे कनेक्टेड है? पिता से। तो पिता का जो है 5वें लाइन तक है, और इसमें कॉमन इंसेस्टर कौन हो रहा है? नाना। नाना से मिल रहे हैं। तो आप देखें जो है मदर की लाइन में 3 आ रहा है और फादर की लाइन में 3 आ रहा है, इसलिए जो है ये सपिंड है और इनके बीच विवाह नहीं हो सकता। एनी डाउट? दिस इज स्केच 1। एनी डाउट टू एनी पर्सन? सर फिर से बता दीजिए एक बार। आप देखें पहली फिगर, मैं इसीलिए हिंदी में बोल रहा हूं बड़े स्मूथली। पहली फिगर देखें जिसमें पी और जी दो हमने बनाए हैं, पी लड़का है और जी जो है लड़की है, गर्ल। क्या इन दोनों में शादी हो सकती है? जी कौन है? ये पी के मामा की लड़की है, ठीक है। पी किससे कनेक्टेड है? पी मदर साइड से। मामा माने क्या हुआ? मामा माने नाना का लड़का। कॉमन इंसेस्टर कौन हो रहा? नाना हो रहा। तो जो लड़का पिंडदान दे रहा वो नाना को दे रहा, नाना तक जा रहा, क्योंकि 3 लाइन मदर की तरफ से है। और अगर लड़की पिंडदान देती, अगर लड़की पिंडदान देती तो क्या होता? ये भी अपने जो है फादर को और उनके फादर को, और लड़की की तरफ से 5 लाइन जाता, तो ये तीसरी लाइन में है, इसलिए क्या होगा? ये एक दूसरे के सपिंड होंगे। अभी एक मैसेज मैंने रीड आउट किया, कोई कह रहा था मुझे स्केच नहीं मिला। स्केच मैंने आपके व्हाट्सएप पर, जो आपका ग्रुप है क्लास का, उस पर मैंने डाल दिया है। तो व्हाट्सएप अगर आप ओपन करेंगे तो यू विल गेट द स्केच। एनी डाउट? दूसरा स्केच देखें। दूसरे स्केच में मैंने बनाया है कि क्या कोई व्यक्ति अपने चाचा के लड़के, चाचा का लड़का क्या होगा? भतीजा, भतीजा के लड़की से शादी कर सकता है? क्या कोई लड़का अपने चाचा के लड़के के लड़की से, चाचा का लड़का माने भाई हुआ उसका, भतीजा ने, सॉरी भाई, क्या अपने भतीजी से शादी कर सकता है? इसमें भी देखिए पिंड कैसे निकाला जाता है। पिता की लाइन से कनेक्टेड है। लड़की किससे कनेक्टेड है? माता की लाइन से सॉरी, लड़की भी पिता की लाइन से कनेक्टेड है। लड़का अगर देखे पी, तो चाचा माने क्या हुआ? चाचा का मतलब जो है इसका ग्रैंडफादर, बाबा इसका जो है कॉमन इंसेस्टर है। तो अगर आप बी के तरफ से काउंट करिए तो ये फादर से कनेक्टेड है 5 लाइन, 5 लाइन के अंदर ये तीसरी लाइन में कनेक्टेड है। और लड़की की तरफ से अगर काउंट करिए तो 1 2 3 और 4 ये चौथी लाइन से कनेक्टेड है, ये भी 5 से कम है। तो दोनों फादर से कनेक्टेड है, इसलिए जो है इनके अंदर विवाह नहीं हो सकता। स्केच नंबर 2। कोई डाउट? मैं प्रोसीड फर्दर? यस सर।
तीसरा स्केच देखें, कोई आदमी अपने मौसी की लड़की से शादी कर सकता है। मौसी किससे रिलेटेड है? नाना से। नाना के 2 बच्चे हुए, दोनों लड़कियां हैं, एक माँ हुई और दूसरी मौसी हुई, ठीक है। तो यहाँ आप कनेक्शन अगर तीसरे फिगर में देखें तो तीसरे फिगर में कनेक्शन क्या है? ये मदर लाइन से जुड़ा हुआ है, लड़का मदर के लाइन से जुड़ा हुआ है और लड़की किस लाइन से जुड़ी हुई है? लड़की भी मदर के लाइन से जुड़ी हुई है, दोनों मदर के लाइन से जुड़े हुए हैं। इसलिए क्या है, ये तीसरे के अंतर्गत अगर आते हैं मदर की लाइन में तो ये जो है वो सब रिलेशन है। आप देखें जो है लड़का जो है नाना के बीच में माँ है, 3 लाइन हुआ, और लड़की भी उसकी माँ है और फिर उसका नाना है, ये भी तीसरे लाइन तक है, क्योंकि ये जो है दोनों माँ जुड़े हुए हैं, लेकिन ये तीसरे लाइन तक ही है, इसलिए क्या होंगे, आपस में सपिंड होंगे। ठीक है। चौथा स्केच देखिए, चौथे स्केच में कहा गया है कि क्या कोई व्यक्ति अपने मामा के लड़के की लड़की से शादी कर सकता है? मामा के लड़के की लड़की से। मामा किससे जुड़ा हुआ? नाना से। इसलिए पहला स्केच आप देखें पी की तरफ से, पहला जो है माँ है, दूसरा नाना है। लड़की की तरफ से अगर देखें, पहली लड़की है, फिर उसका पिता है, फिर उसके पिता का पिता है और फिर नाना है। तो ये पिता की लाइन है लड़की की तरफ से, तो पिता की लाइन में 5, लेकिन यहाँ ये चौथे पर ही जुड़ी हुई है और लड़का जो है तीसरे पर ही जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों इसमें सपिंड हैं। अगला फिगर देखें, 5वां, ये और आपको एक्सप्लेन करेगा। नाना के भाई की लड़की से क्या शादी हो सकती है? नाना का भाई किससे जुड़ा हुआ? पर नाना से। इसलिए मैंने स्केच 5वां बनाया है। लड़का जो है माँ से जुड़ा हुआ है, माँ नाना से जुड़ी हुई है, नाना पर नाना से जुड़े हुए हैं, और नाना का भाई किससे जुड़ा हुआ? पर नाना से। और इसकी लड़की से क्या शादी हो सकती है? यस। क्यों हो सकती है? क्योंकि अगर आप देखें ये मामा से जुड़े हुए हैं, तो पी को अगर देखें तो तीसरी लाइन नाना तक आ रही है। कॉमन इंसेस्टर नाना नहीं है, कॉमन इंसेस्टर कौन है? पर नाना है। तो पर नाना जो है वो सपिन रिलेशनशिप के अंतर्गत नहीं है, उनकी तरफ से 3 ही लाइन है। तो पर नाना के जो भी रिश्तेदार होंगे, दूसरा 6वां फिगर एकदम क्लियर मैंने बना दिया कि पर नाना के जितने भी रिलेटिव्स होंगे उनसे शादी हो सकेगी। कोई डाउट किसी को? Please tell. I am not getting voice of any person. फिगर नंबर 6 में नाना के भाई की लड़की बोल रहा था। हाँ, नाना का भाई जो है किससे जुड़ा हुआ? पर नाना से जुड़ा हुआ ना। तो मदर के साइड से तो 3 इंक्लूड करके या एक्सक्लूड करके हम देखते हैं। नहीं, जो आदमी है, जो लड़का है, उसको भी इंक्लूड करिए। तो इंक्लूडिंग 3। हाँ, नहीं, इंक्लूडिंग 3 नीचे से चलिए ना, पी से चलिए। पी एक जनरेशन, एम दूसरी जनरेशन, एम एफ तीसरी जनरेशन, नाना है ये, मदर फादर, और ये चौथी जनरेशन में आ रहा है पर नाना, मदर्स फादर। तो माता की लाइन में अगर देखें तो 3 ही जनरेशन है, ये चौथी जनरेशन में कॉमन इंसेस्टर आ रहा है, इसलिए क्या हो सकता है, इससे शादी हो सकती है। लेकिन लड़की की तरफ से देखे तब कुछ तो पर नाना के जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी ऑफ स्प्रिंग से, उनसे मैरिज हो सकती है। एनी डाउट? सर बेसिकली इसका यही है कि मदर साइड में 3 जनरेशन के बाद
हाँ, अगर मदर साइड में 3 और उसमें लड़का भी या लड़की भी जुड़ेगी। उसके बाद चौथे में कोई प्रोहिबिशन नहीं है, केवल 3 लाइन तक प्रोहिबिशन है। अगर कॉमन इंसेस्टर का मतलब जहां आपको कॉमन मिल जाए, दोनों का जहां जुड़ाव हो रहा हो, अगर वो 3 तक है तो सपिंड रिलेशन। अगर 3 से बाहर है तो वो जो है सपिंड से बाहर हो जाएगा। तो मतलब सर थर्ड में अपने आप को हम इंक्लूड करेंगे इन जनरेशन में मदर के साइड से। हाँ, अपना का मतलब कि लड़के और लड़की दोनों को इंक्लूड किया जाएगा। मैं हो गया, मेरी मम्मी, मेरे नाना, ये 3 जनरेशन काउंट हो जाएगा। 3 जनरेशन हो गया तो नाना के जितने रिश्तेदार आएंगे नीचे, उनसे आपका विवाह नहीं हो सकता। लेकिन अगर परनाना से जुड़ाव है, जैसे नाना का भाई हुआ, किससे जुड़ा हुआ है? परनाना से। तो जब परनाना कॉमन इंसेस्टर है तो वो चौथे के साइड में, तो जब वो चौथे पर आ रहा तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ मैरिज हो सकती है। तो अगर नाना का भाई है और उसके कोई लड़की है, वहां मैरिज हो सकती है और मैरिज वैलिड मानी जाएगी। ये सपिंड रिलेशन में नहीं आएंगे। सर 6 में फिर डी की मैरिज पी से हो सकती है। हाँ, ये भी परनाना है ना। देखिए आप इसमें 6 में पी जो है, पहला जो है मदर है, दूसरा मदर्स फादर है, तीसरा मदर्स फादर है। यानी लड़का जो है माता से, माता का पिता नाना से और नाना के पिता परनाना से। ठीक है। अब नाना का भाई यानी परनाना का लड़का, परनाना के लड़के के लड़की से ये शादी करना चाहता है, मैरिज हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर देखें तो डॉटर साइड में देखें तो ये 5 इंक्लूडेड है, 1 2 3 4 और 5वें में आ रहा है ना। लेकिन लड़के के साइड से अगर आप देखें तो ये जो है 3 से बाहर जा रहा है, क्योंकि माता से जुड़ा हुआ लड़का। और लड़की किससे जुड़ी हुई है? लड़की पिता से जुड़ी हुई है। यहाँ जो शादी करता चाहता है उसका सेक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका सेक्स जो भी हो कोई मतलब नहीं। ये अपने पिता के थ्रू जुड़ी हुई है। कहां तक जा रही है? ये जा रही है पिता पर पिता पितामह, पर पितामह और पर पितामह। ये 5 डिग्री के अंदर है। ये 5वीं डिग्री में है तो 5वीं डिग्री में प्रोहिबिशन हो गया। लेकिन इसका तो प्रोहिबिशन हो गया, लेकिन लड़के की तरफ से प्रोहिबिशन नहीं हो रहा, इसलिए क्या होंगे? ये जो है सपिंड नहीं होंगे। यस सर। और कोई एनी क्वेश्चन? क्योंकि ये समझना बड़ा जरूरी है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर आपको इनहेरिटेंस में भी बात होगी। सर फिगर नंबर 5 है, उसमें गर्ल्स के साइड को मैंने एक्सप्लेन किया है। सर फिगर नंबर 5 है सर, दोनों साइड में जोड़ा जाता है सर। गर्ल्स के साइड से अगर प्रोहिबिटेड होगा तो सर? हाँ, गर्ल्स के साइड से तो हुआ प्रोहिबिटेड, लेकिन दोनों के साइड से कॉमन इंसेस्टर उसमें आना चाहिए सपिंड में। गर्ल्स के साइड से तो सपिंड में आ रहा, लेकिन जो है बॉय के साइड से सपिंड में नहीं आ रहा, इसलिए मैरिज हो जाएगी। कॉमन इंसेस्टर जो है बन रहा हो, कॉमन इंसेस्टर माने जहां लिंक बन रहा हो, वह लिंक जो है सपिंड रिलेशन में आना चाहिए। अगर वो आ रहा तभी सपिंड होंगे, नहीं तो सपिंड नहीं होंगे। तीसरा बहुत आसान है। तीसरे में यह है कि कोई व्यक्ति क्या अपने मौसी की लड़की से शादी कर सकता है? दोनों किससे जुड़े हुए हैं? माँ के थ्रू जुड़े हुए। लड़का भी माँ के थ्रू जुड़ा हुआ, लड़की भी माँ के थ्रू जुड़ी हुई है। मौसी क्या है? मौसी माने जो है मौसी की लड़की। ये एक जनरेशन उसकी लड़की हो गई, दूसरी जनरेशन मौसी हो गई, तीसरी जनरेशन नाना हो गया। और लड़के के तरफ से भी देखें तो पहली जनरेशन पी हो गई, दूसरी जनरेशन मदर हो गई, माता हो गई, और तीसरी जनरेशन जो है नाना हो गया। दोनों तरफ से जो है कॉमन इंसेस्टर प्रोहिबिटेड में आ रहा है विद इन 3 में, इसलिए क्या होंगे? ये जो है सपिंड होंगे। एनी डाउट? और कोई क्वेश्चन?
कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चन? आगे बढ़े? यस सर। हाँ बोलिए भाई। हाँ है, लड़कियों में कोई समस्या? एनी गर्ल्स कम आउट? तो भाई लड़कियों में कोई समस्या समझने में? क्या युक्ता? सर 6 वाला रिपीट कर दीजिए। 6 वाला? यस सर। 6 वाले में यह है कि ये आप जो है ये जुड़ाव कहाँ से है, कॉमन इंसेस्टर रहा है लड़के के साइड में, ये पर नाना से लिंक बन रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या कोई भी व्यक्ति अपने नाना के भाई के लड़के की लड़की से शादी कर सकता है? अगर आप लड़के के साइड में चलें तो लड़के के साइड किससे जुड़ा हुआ? मदर से। और मदर से अगर जुड़ा हुआ तो 3 लाइन कहाँ जाएगी? नाना तक। और नाना आ गया इसलिए चौथी लाइन हो गई, केवल ये 3 लाइन तक जाएगा। और लड़की के तरफ से अगर आप देखें तो लड़की किससे जुड़ी हुई है? सब इसमें मेल है, अपने पिता के थ्रू जुड़ी हुई है। तो पिता के थ्रू जुड़ी हुई है तो 5 लाइन। लड़की के साइड से अगर काउंट करें तो डॉटर 1, इसका पिता 2, इसका पिता 3, इसका पिता 4 और इसका पिता 5। तो लड़की की तरफ से अगर काउंट करें तो 5 ही है। पिता के तो ये तो आ रही है सपिंड में, लेकिन लड़के के साइड से काउंट करेंगे तो ये चौथी लाइन है। और माता से लड़का क्योंकि जुड़ा हुआ है इसलिए ये जो है वो है सपिंड नहीं है। समझ गया? थैंक यू सर, समझ आ गया। इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, अपने दिमाग में बना लीजिए। कोई आदमी क्या अपने बुआ के लड़के से शादी कर सकता है? कोई आदमी क्या जो है अपने मौसी के लड़के से शादी कर सकता है? और इसको नीचे तक ले जाइए। मौसी मान लीजिए है, मौसी की लड़की है, उसकी लड़की है, उसके लड़की की लड़की है, उसके लड़की की लड़की है, शादी हो सकती है कि नहीं? ये अपने आप फिगर बना के आप लोग जो है देख लीजिए। क्योंकि मौसी तो ठीक है वो आती है उसमें सपिंड में, मौसी की लड़की भी सपिंड में आती है, लेकिन मौसी की लड़की हो गई अगर तो सपिंड में नहीं आएगी, वो मदर साइड जुड़ रहा है। ये फिगर 4 में क्या होगा, सपिंड होगा कि नहीं? इस फिगर 4 में आप देख लीजिए सपिंड है। क्योंकि लड़की जो है वो किससे लड़का किससे जुड़ रहा है? नाना से। और लड़की किससे जुड़ रही है? अपने पिता साइड से। ये मेल है, पिता साइड है। लड़की उसका पिता, उसका पिता, उसका पिता। तो 1 2 3 और 4 ही है। पिता की इस लाइन में 5 तक जाएगा, ये तो 4 ही है। और लड़का क्योंकि मदर से जुड़ा है इसलिए 3 लाइन तक। इसलिए क्या है सर? हाँ बोले। अब तो हमने जो फिगर बनाया है सब में हमने लड़के को सेंटर में रख के बना रहे हैं। अगर हम उस लड़की को रख के दोनों को सेंटर में रखना है। लड़के के तरफ से भी गिनती होगी और लड़की की तरफ से भी गिनती होगी, ठीक है? तो एक आपको ऊपर जाने पर एक कॉमन इंसेस्टर मिलेगा। कॉमन माने जहां जो है लड़की का भी पूर्वज और लड़के का भी पूर्वज एक हो जाएगा। सर ये कैसा फिगर बनाया जो पांचवे पे जाके सिर्फ कॉमन मिल रहा है? हाँ कोई दिक्कत नहीं, अगर 5वें पर मिल रहा, दोनों फादर से जुड़े हुए। ये देखिए किससे जुड़े हुए हैं? लड़की से मतलब जो डॉटर जा रही हो, मतलब वो लड़की जो जा रही है मदर साइड से 5 पे जाके जुड़ रही है। नहीं, तब वो सपिंड नहीं होगी। अगर वो मदर से जुड़ी हुई है
तो वो जो है 3 लाइन तक। ओके, हाँ और लड़का भी 5वें पे जाके कॉमन, दोनों हाँ, ठीक 5वें है। पे कॉमन मिल रहा है। 5वें पर कॉमन हो रहे हैं, तो अगर फादर के साइड में 5वां है तब तो सपिंड होगा, लेकिन अगर मदर के साइड से 5वां है तो सपिंड नहीं होगा, क्योंकि दोनों को हमको लेके चलना है। और दोनों अगर जो है 3 और 5 के अंतर्गत हैं तो सपिंड है, अगर उससे बाहर है तो सपिंड नहीं है। ओके सर, गॉट इट। इसको खूब प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए, कोई व्यक्ति अपने मौसी से शादी नहीं कर सकता। मौसी किससे रिलेटेड है? नाना से। ठीक है, मौसी की लड़की से शादी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मौसी की लड़की भी जो है वो 3 जनरेशन में आ रही है, मदर साइड से जुड़ी हुई है। लेकिन मौसी की लड़की की लड़की की लड़की से शादी हो जाएगी। क्यों? 3 जनरेशन की 4थी जनरेशन हो रही है। बात समझ रहे हैं? तो जहां पर अगर कॉमन एंसेस्टर, जहां पर कॉमन एंसेस्टर 3 और 5 में आता है, ये हमको देखना है कि लड़की या लड़का किससे जुड़े हुए हैं। एकदम इमीडिएट उसके ऊपर जाइए। लड़की जो शादी करना चाहती है, लड़का जो शादी करना चाहता है, उससे तुरंत इमीडिएट ऊपर जाइए। माता से जुड़ा है या पिता से जुड़ा है? ठीक है, अगर वो माता से जुड़ी हुई है तो 5 लाइन। लड़का भी अगर माता से जुड़ा हुआ है तो 3 लाइन, पिता से जुड़ा हुआ तो 5 लाइन। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, लेकिन आप स्केच बराबर कर लीजिए इसे, और जितने रिश्ते आपके दिमाग में आते हैं उन रिश्ते को पहले बनाना सीख लीजिए। और अगर एक बार बनाने में मास्टरी हो गई आपकी, कॉमन एंसेस्टर आपने निकाल लिया तो बहुत आसान होगा काउंट करना। और कॉमन एंसेस्टर अगर नहीं निकाला तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन किसी के दिमाग में है? तो भाई, एनी क्वेश्चन? हेलो सर, प्रोबेबिलिटी डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में तो पर्सन जिसको काउंट करते हैं तो वो तो एक्सक्लूडेड होता है। हाँ, प्राइवेट एक्सक्लूडेड नहीं, प्राइवेटेड में तो देखो दोनों में अंतर है। सपिंड में हम काउंटिंग करते हैं, प्राइवेटेड में सीधे रिलेशन बना दिया गया। प्राइवेटेड जो है वो सीधे रिलेशन बना, 3G एकदम रिलेशन बता देता है कि कोई भी व्यक्ति अपने लीनियर एसेंडेंट से शादी नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति अपने लीनियर एसेंडेंट के हस्बैंड और वाइफ से शादी नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति अपने भाई की वाइफ से शादी नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति फादर के भाई की वाइफ से शादी नहीं कर सकता। मदर के ब्रदर भाई के वाइफ से नहीं शादी कर सकता। इसी तरह ग्रैंडफादर है, ग्रैंडमदर है, वो पर्टिकुलर रिलेशन है। प्रोहिबिटेड माने इन रिलेशन में शादी नहीं होगी। और सपिंड क्या है? ये जो है ये रेलगाड़ी की तरह डब्बे हैं, इसको हमें निकालना पड़ेगा। और ये डब्बे जाएंगे, मदर की लाइन में 3, पिता की लाइन में 5। बोले भाई? सर उसमें जनरेशन काउंट नहीं करते हैं सर प्रोबेबिलिटी। हाँ, प्राइवेटेड में जनरेशन नहीं, प्राइवेटेड में आदमी काउंट होता है। जी सर, थैंक यू सर। जैसे जैसे कि कोई व्यक्ति अगर रिलेशन है चाचा भतीजी का, मामा भांजी का, एकदम पर्टिकुलर रिलेशन है। और सपिंड में पर्टिकुलर रिलेशन नहीं है। कोई डाउट? नो सर। एनी पर्सन हैविंग एनी डाउट? तो कैसे समझना बड़ा जरूरी है। अगर पहले आप स्केच बना लीजिए, स्केच बना के समझ लीजिए और अपने डाउट्स रिमूव कर लीजिए।
ठीक है, बुआस डॉटर्स डॉटर, हाँ ये प्रॉब्लम आई है, आप इसको स्केच करिए। बुआ किससे जुड़ी हुई है? दादा से। बुआ किससे जुड़ी हुई है? दादा। बुआ जो है वो फादर्स लाइन में है। ग्रैंडफादर। बुआ जो है फादर्स लाइन में है। कॉमन इंसेस्टर कौन होगा? ग्रैंडफादर। बुआ और फादर का कॉमन इंसेस्टर ग्रैंडफादर है। ग्रैंडफादर। हाँ ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर एक तरफ से, बुआ की लड़की है कि लड़का है? बुआ की लड़की थी। क्वेश्चन एक बार रिपीट करिए। बुआ की लड़की थी ना? बुआ की नतनी। नतनी, ठीक है। तो नतनी जो है कहां से जुड़ी हुई है? मदर लाइन में जुड़ी हुई है। नतनी माने नतनी किसे कहते हैं ये बताइए, क्योंकि नतनी में भी कंफ्यूजन है। कुछ लोग लड़के की लड़की को नतनी कहते हैं, वो होती है पोती, और लड़की की लड़की होती है तो नतनी कहते हैं उसे। बुआ की नतनी माने क्या? बुआ की बेटी, बुआ की लड़की की लड़की। हाँ, तो अब आप आइए, बुआ के लड़की की लड़की, पहले लड़की एक जनरेशन, उसकी मदर यानी कि बुआ की लड़की दूसरा जनरेशन, तीसरा जनरेशन बुआ, सब फीमेल है, सब फीमेल है, मेल इसमें कोई नहीं है। तो लड़की किससे जुड़ी हुई है? माता से। और लड़का किससे जुड़ा हुआ है? फादर से। क्यों? लड़का पिता से कैसे जुड़ा? उसका पिता, पिता की बहन ही जो है बुआ हुई। तो और पिता का पिता यानी ग्रैंडफादर। तो कॉमन इंसेस्टर कौन हो रहा? ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर से दोनों जुड़े हुए हैं। लेकिन बुआ की लड़की किससे जुड़ी हुई है? बुआ के लड़की की लड़की ये मदर साइड से जुड़ी हुई है। लड़की एक, मदर मदर माने बुआ की लड़की दो, उसकी मदर बुआ तीन, और उसके पिता। तो ये जनरेशन कहाँ जा रहा है? ये जनरेशन जा रहा है मदर लाइन में, वो 3 से ऊपर है, इसलिए मैरिज हो सकती है। ये सपेट नहीं माने जाएंगे। भाई क्वेश्चंस बहुत जल्दी डिसअपीयर हो जा रहे हैं, इसलिए मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। मुझे इतनी आइडिया नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से मैं पाऊंगा। मैं क्वेश्चन पढ़ लूं। स्क्रॉल बढ़ाइए, स्क्रॉल आगे पीछे कीजिए, स्क्रॉल से। तो इसको आप लोग स्केच बना के और खूब अच्छी तरह से इसको जो है आप जो है प्रैक्टिस कर लीजिए। और लड़की और लड़की के तुरंत इमीडिएट जो है गार्जियन कौन है, फादर है या मदर है, उसी से काउंटिंग होती है। मदर साइड है, फादर साइड है। मदर साइड में 3 जनरेशन, फादर साइड में 5 जनरेशन। ओके, आगे बढ़े। सेक्शन 6 जो है रिपील कर दिया गया है। सेक्शन 7 क्या कहता है? सेक्शन 7 is actually providing, if you go through the bare provision, what is written? फादर की साइड में काउंटिंग जो होती है वो 5 जनरेशन की तरह। सेक्शन 7 अगर आप देखें, व्हाट इज द काउंटिंग फ्रॉम फादर साइड, 3rd जनरेशन। फादर के साइड से 5 भैया, मदर के साइड में 3। अगर फादर के साइड में 3 है तो वो सपिंड माना जाएगा। नहीं सर, क्वेश्चन ये है कि फादर के साइड से काउंटिंग करते समय अगर तीसरे जनरेशन में मैटरनल साइड कोई आ गया तब जो है क्या करेंगे?
वहाँ आप एग्जाम्पल बताओ ना। फिगर में सर कनेक्ट करते समय कुछ आ रहा है, ड्रा करते समय उसको। हाँ नहीं, आप बताइए रिलेशन क्या है। रिलेशन तो आपको बताना पड़ेगा ना कि ये रिलेशन शादी हो सकती है कि नहीं, वो रिलेशन आप हमको बताइए, आंसर तुरंत मिलेगा आपको, क्योंकि फिगर ड्रा करना है। ग्रैंड मदर रिलेटेड है, पिता से रिलेटेड है, फादर से। हाँ, तो फादर की लाइन में लेगा, ये मदर की लाइन में नहीं जाएगा। और हिंदू लॉ में मोस्टली जो है, अगर आप देखें तो वो एम्फेसिस दी जाती है वो मेल को। पैट्रियार्कल सोसाइटी है अपनी। सर स्पीड में दोनों को होना जरूरी है सर, अगर एक स्पीड में आता है एक नहीं आता है तो जो अगर नहीं अगर नहीं आए कोई भी, दोनों को आना जरूरी है। एक भी अगर नहीं आया तो मैरिज हो जाएगी, मैरिज हो सकती है, तो वो सपिंड नहीं माने जाएंगे। थैंक यू सर। दोनों तरफ से हमको जो है वो डिग्री नहीं। चार 5 मिनट टाइम बचा है। भाई बुआ डॉटर मैंने बताया, बुआ डॉटर, बुआ किससे जुड़ी हुई है, पहले वो निकालिए। बुआ जुड़ी हुई हैं, ये फादर जुड़ी किससे है, ग्रैंडफादर से। तो ग्रैंडफादर में अगर जाएंगे तो बुआस डॉटर्स डॉटर, बुआस डॉटर्स डॉटर एक जनरेशन, बुआस डॉटर दूसरी जनरेशन, सब माँ है। बुआ तीसरी जनरेशन और बुआ का पिता ये चौथी जनरेशन हो गया। तो ये 30 कॉमन इंसेस्टर 3 से बाहर हो रहा है। और लड़के के लाइन में बुआ को देखें तो बुआ किससे कनेक्टेड है, ग्रैंडफादर से। ग्रैंडफादर की लड़की है, आपके फादर की बहन है, ये तीसरे डिग्री में है। तो एक तरफ तो ये आ रही है सपिंड में, अगर आप लड़के के साइड से देखें, लेकिन लड़की की साइड से देखें तो ये सपिंड में नहीं आ रही है, इसलिए मैरिज संभव। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैरिज पॉसिबल है, बट ये प्रैक्टिकल सेंस में काफी अनइथिकल नहीं लगता है, क्योंकि रिलेशन ये बुआस डॉटर ही जैसे कि फुफेरी बहन कहते हैं और उसकी डॉटर, तो काफी क्लोज रिलेशन में आती है तो भी। अब सवाल ये कि आपका क्वेश्चन कितना प्रैक्टिकल है। बुआ का एक जनरेशन, बुआ किससे, फादर से इक्वलेंट है, ठीक। यानी बुआ की बहन है तो फादर के इक्वलेंट होंगे, 2-4 साल आगे, 2-4 साल, ठीक। बुआ की लड़की जो होगी वो किसके इक्वलेंट होगी, वो जो है लड़के के इक्वलेंट होगी, ठीक है। अब इसकी लड़की जिससे बहुत छोटी होगी उम्र में, और उसकी लड़की तो क्या है, क्या मैरिजेबल एज उस आदमी की होगी कि वो अपने बुआ के लड़की की से शादी करेगा। क्यों भाई,
ये अनैतिक दिख रहा है, इमोरल दिख रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। सर कहीं कहीं पॉसिबल होता है, मतलब एज डिफरेंस बहुत जगह तो ऐसा होता है कि मामा भांजी का भी एज बहुत सिमिलर होता है। मामा भांजी का एज मान सकते हैं सिमिलर होता है, लेकिन बुआ का जो है एज तो नेचुरली फादर के बराबर होगा। तो लेकिन कहीं भी जहां आप देखेंगे प्रैक्टिकली जहां ये प्रोहिबिट कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली जो है मैरिजेबल एज रही नहीं जाती। अब 70 बरस का आदमी जो है किसी जो है लड़की से जो 20 बरस की है उससे शादी करेगा? मैरिजेबल एज होती ही नहीं है। तो इसलिए इसे जो है बनाया गया है कि जहां मैरिजेबल एज नहीं है अपने आप ही वहां शादी नहीं होगी। ठीक है, हाँ बोलो। सर तो ऐसा बनाया क्यों गया था जब प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं था? तो मतलब फिर इसीलिए देखिए लॉ वहीं तक चलता है जहां तक ये होता है कि ये ऑफेंस हो सकता है। जहां फिजिबिलिटी नहीं ऑफेंस की वहां लॉ बनाने की क्या जरूरत है? लॉ तो वही बनाएंगे ना जहां पर उसकी फिजिबिलिटी हो। अगर फिजिबिलिटी नहीं है तो लॉ क्यों बनाया जाए अननेसेसरी? तो इसलिए इसको जो है रखा गया। बहरहाल आप कैच खींच लीजिए, इसीलिए आज मैंने पूरा पीरियड इसी पर दे दिया कि आपके दिमाग में कहीं कोई डाउट न रह जाए। अगर क्लास होता तो बोर्ड होता तो मैं तो तब भी एक लेक्चर मैं इस पर देता हूं कि कैसे फिगर बनाया जाए और कैसे काउंटिंग की जाए, क्योंकि अगर आपने फिगर बना लिया काउंटिंग आसान है, फिगर ही नहीं बना पाए तो काउंटिंग तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? और कोई? सर आइए तो तमाम प्रवल इसमें क्या है कॉम्प्लिकेशन निश्चित है हमारे यहाँ समान गोत्र और समान प्रवर में लिखा है। देखिए समान गोत्र और समान प्रवर, समान गोत्र क्या होते हैं? एक फिलॉसफी है हिंदुओं कि हम सभी किसी न किसी ऋषि की संतान है। गोत्र का नाम क्या होता है? किसी ऋषि के नाम पर होता है। लोग कहते हैं गौतम है, कोई कहता हम सांडिल है, कोई कहता हम ये है, कोई कहता हम वो है। गौतम माने जो ऋषि गौतम थे उनकी संतान है। तो पहले तो ये प्रचलन था कि एक ही गोत्र में मैरिज जो है वो नहीं होती थी, लेकिन बाद में ये देखा गया कि गोत्र को अगर हम प्राइवेट करेंगे तो बहुत बड़ा समुदाय आपस में मैरिज नहीं कर सकेगा, इसलिए गोत्र को अब खत्म कर दिया गया। अब गोत्र के अंदर शादी हो सकती है, ये इलीगल नहीं है। आप इमोरल जरूर कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट इलीगल। गोत्र के बाद दूसरा नाम आपने बताया क्या? जो भाई प्रवर, प्रवर, प्रवर क्या होते हैं? प्रवर वो लोग होते हैं जब शादी होती है तो उनकी जो है पहले नाम लिया जाता है। जब आप किसी मैरिज को अटेंड करेंगे तो आप देखते हैं कि जब सेरेमनी होती है तो 5 पुस्त के नाम पूछे दोनों तरफ से बोले जाते हैं। ये क्या है? 5 पुस्त में कोई ऐसा न निकल जाए जो कॉमन हो जाएगा। मैरिज भी प्रवर होती थी, इनकी पूजा करके तब मैरिज जो है की जाती थी दोनों साइड। तो अब प्रवर भी प्रतिबंध खत्म हो गया। अब प्रवर के अंदर भी शादी हो सकती है बशर्ते कि वो सपिंड न हो। ओके, एनी मोर क्वेश्चन?
देखें तो सर हाँ सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर एक का शादी दो ठो हुआ हो और उनके मतलब अलग अलग बच्चे, जैसे लड़कियों इन दोनों की अलग अलग लड़की हो गई, फिर उसके बाद मतलब उन लोगों ने आगे अगर शादी की तब उसमें किसको सर कॉमन मानेंगे? इसमें ये तो उसके प्राइवेट पति को या उसके ससुर को? ना ये प्राइवेट रिलेशन क्या हुआ, क्योंकि चिल्ड्रंस ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर दे कैन नॉट मैरी। अगर किसी ने दो शादी किया है तो दोनों जो है वो आपस में बच्चे, आपस में भाई बहन होंगे कि नहीं, और उनके बच्चे अगर हैं तो ये भाई बहन के बच्चे होंगे, दोनों भाई के बच्चे होंगे, तो ये तो प्राइवेट डिग्री में जो है वैसे ही जो है शादी नहीं हो सकती। ओके सर। पिता का जो ननिहाल है सर उसको फादर में रखेंगे या मदर में? पिता का ननिहाल, ननिहाल माने नानी, यही ना? तो नानी के साइड में हाँ, नानी की जो साइड होगी तो नानी का अगर लड़का होगा तो क्या होगा, नानी का लड़का जो है वो क्या होगा? मामा। पिता का तो मामा होगा। हाँ, पिता का मामा होगा। तो उस साइड में तो मैरिज तो प्राइवेटेड है, मैरिज सपिंड में आ रही है। सर इसको फादर की तरफ से ही देखेंगे मतलब? नहीं नहीं, देखिए ऐसा डिपेंड करता है कि नानी जो, अगर नानी तो कॉमन इंसेस्टर होगी नहीं, नानी को अगर आप देखेंगे नानी कॉमन इंसेस्टर नहीं होगी। नहीं होंगी सर, यहाँ पे परनाना वगैरह क्या जाके कॉमन इंसेस्टर। हाँ, कॉमन इंसेस्टर तो परनाना निकलेगा, और जब परनाना के जितने भी रिलेटिव्स हैं उनमें शादी हो सकती है, क्योंकि नाना तक तो प्राइवेटेड है 3 जनरेशन। परनाना मैंने इसीलिए एग्जांपल दिया था कि परनाना के सारे रिलेशन में मैरिज हो सकती है। सर यहाँ डाउट ये था कि सर चूंकि एक जनरेशन तो फादर तक जाता है, लेकिन फिर फादर के मदर से रिलेशन में जा रहा है सर, ऊपर में जनरेशन जो ऊपर बढ़ रहा है। भाई कॉमन इंसेस्टर कौन निकल रहा है ये आप वो तो ठीक ठीक सर, हमको ये नहीं कहां से जा रहा है। कॉमन इंसेस्टर पहले निकाल लीजिए, कॉमन इंसेस्टर निकालिए और फिर नीचे से गिनना शुरू करिए। अगर जो है इमीडिएट फीमेल है तो मदर हो गई, इमीडिएट फादर मेल है तो फादर हो गया। फादर की लाइन में 5, मदर की लाइन में 3। बहुत आसान। ठीक सर। उन्होंने जो पहले जो क्वेश्चन पूछा था कि कोई आदमी है दो शादी किया है, हाँ, और तो कितने जनरेशन तक ये सब प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आएगा सर? अब आप काउंट कर लीजिए, अगर उसने 2 शादी की है, ठीक है, तो 2 शादी की है तो दोनों शादी से 2 बच्चे हुए, ठीक है। और नीचे आइए, इसलिए वर्ड इसमें क्या लिखा, प्राइवेटेड। प्राइवेटेड में वर्ड जो लिखा हुआ है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मानो children of brother and sister or of 2 brothers or of 2 sisters। हाँ जी, they cannot marry। ओके सर, जैसे मान लीजिए कि एक आदमी है, उसकी 2 शादी हुई, दो वाइफ सर, एक से सर 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। अरे भाई, लेकिन इसमें तो जो आपका कॉमन इंसेस्टर निकलेगा वो तो फादर निकलेगा ना। लेकिन सर ये कितने जनरेशन तक प्रोहिबिटेड हो सकता है, ये हम कह रहे हैं। 5 यहाँ भी गिनना पड़ेगा आपको। अगर फादर के तरफ से चलेंगे तो 5, अगर मदर के तरफ से जुड़ रहा तो 3, आना वही पड़ेगा आपको। तो फिर सर जैसे मान लीजिए कि बहन की ननद है, तो ऐसे सिचुएशन में तो कॉमन इंसेस्टर बहुत मुश्किल हो जाएगा निकालना। बहन की ननद कहाँ कॉमन इंसेस्टर निकलेगा यार? हाँ, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना सर ऐसे में। ननद जो बहन की है उसका रिलेशन वो तो सेपरेट फैमिली है। सेपरेट हो गया। बहन की ननद किससे जुड़ी हुई है? बहन के ससुर से। तो
उसमें कॉमन इंसेस्टर आप पाएंगे ही नहीं, शादी हो सकती है। ठीक, ओके सर। ओके, यस सर। चलिए ठीक है, देख प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम बनती है तो मंडे को फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कोई जल्दी नहीं है, अभी टाइम बहुत